Hey guys, welcome back to the channel. Stay tuned with Aman Rawat. You're watching the beautiful live stream where we discuss about the Think and Grow Rich. एक सेकेंड मुझे चाहिए था, ज़रा लिंक शेयर करके आ जाता हूँ. सॉरी गाइज, लेट हो गया थोड़ा सा. हेलो अमन भाई, हर्ष के गेम प्ले सबसे पहले आए हैं, क्या बात है. कोई जल्दी आए या लेट आए, पर हर्ष के गेम प्ले भाई बिल्कुल टाइम पर आते हैं. जब मैं पहुँचता हूँ तब वो पहुँचते हैं. बिल्कुल बढ़िया. शशांक भाई का भी मैं कमेंट देख रहा हूँ. हर्ष के गेम प्ले कपिल चौधरी आए थे, तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. सॉरी थोड़ा सा आज लेट हो गया, क्योंकि मैं एक वीडियो एडिट कर रहा था यार, उसमें काफ़ी टाइम लग गया. अभी भी मैंने 11:30 बजे का टाइम लगा के, मेरे मतलब टाइम कब निकलता है पता ही नहीं चलता. तो चैप्टर 12 की तरफ चलते हैं. हमेशा की तरह मैं फर्स्ट हूँ. यस, और आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेट हूँ. सॉरी, हर्ष के गेम प्ले 11:35 हो गए. तो आज चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत शानदार है. ठीक है. अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट. हमारे दिमाग, आपने रेडियो स्टेशन देखा है, वहाँ पे क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन होता है. तो हमारा थॉट जो होता है, जो हम सोचते हैं, उसका ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन क्या है? ब्रेन ही तो है. The 12 Step Towards Riches. More than 20 years ago, the author, working in conjunction with the late Dr. Alexander Graham Bell and Dr. Elmer R. Gates, observed that every human brain is both a broadcasting and a receiving station for the vibration of thought. Through the medium of ether, in a flash similar to employed by the radio broadcasting principle, every human brain is capable of picking up vibration of thoughts which are being released by other brains. तो देखो क्या कह रहा है. थ्रू द मीडियम ऑफ ईथर इन अ फैशन सिमिलर टू दैट एम्प्लॉयड बाय द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग प्रिंसिपल, एवरी ह्यूमन ब्रेन इज कैपेबल ऑफ पिकिंग अप वाइब्रेशन ऑफ थॉट. हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो कैपेबल होता है अलग अलग डिफरेंट वाइब्रेशन के थॉट्स को ग्रैप्स करने के लिए, उठाने के लिए, विच आर बीइंग रिलीज बाय अदर ब्रेन्स. तो कुछ लोग डिस्कस करते हैं, कुछ अलग लोग डिस्कस करते हैं, वो भी हमारा दिमाग अट्रैक्ट कर लेता है. हमेशा की तरह मैं फर्स्ट हूँ. क्या बात है. शशांक भाई आ चुके हैं, हर्ष के गेम प्ले आ चुके हैं, सब लोग अपनी पढ़ाई वढ़ाई खत्म करके पहुंच चुके हैं हमारे पास. तो आगे बढ़ते हैं. चैप्टर 12, द ब्रेन, पेज नंबर 256. In connection with the statement in the preceding paragraph, compare and consider description of creative imagination as outlined in the chapter on imagination. The creative imagination is the receiving set of the brain, which receive thought realized by the brains of others. It is the agency of communication between one conscious or reasoning mind and the four sources from which one receive through thought stimuli. When stimulated or stepped up to a high rate of vibration, the mind becomes more receptive to the vibration of thought, which reaches it through the ether from outside sources. This stepping up process takes place through the positive emotions or the negative emotions. Through the emotions, the vibration of thought may be increased. Vibration of exceedingly high rate are the only vibration picked up and carried by the ether from one brain to another. Thought is the energy traveling at the exceedingly high rate of vibration. Thought, which has been modified or stepped up by any of the major emotions, vibrates at a much higher rate than ordinary thought, and it is this type of thought which passes from the other brain to another through the broadcasting machinery of the human brain. The emotion of sex stands at the head of the list of human emotions. As far as intensity, the driving force are concerned, the brain which has stimulated by the emotion of sex vibrates at a much more rapid rate than it does when that emotion is quiescent or absent. तो हमारे साथ शशांक, कपिल चौधरी भाई, इतना लेट क्यों आए आज? अरे यार, मैं एक वीडियो एडिट कर रहा था आयन बॉल से रिलेटेड, तो उसी की इन्फॉर्मेशन और उसी की एडिटिंग में बिज़ी हो गया था. सॉरी दोस्तों, आप लोगों का टाइम ज़्यादा कीमती था, पर मैं अपना टाइम ही नहीं देख पाया. भाई एक बात बोलनी थी. बोलो शशांक भाई. उसमें एक बच्चा जिसको AI कैंसर है, वो बेचारा कैंसर की वजह से देख नहीं पा सकता है. वो मैच में आया था, मैच के बाद जिम्बाब्वे की टीम, क्या था पढ़ा नहीं मैंने. शशांक भाई ने अपने मैसेज रिट्रैक्ट कर लिए. बढ़िया हूँ बस. बताओ शशांक भाई, कौन सी बातें यहाँ ले आए. चलो आगे बढ़ते हैं. The result of sex transmutation is the increase of rate of vibration of thoughts to such a pitch that creative imagination becomes highly receptive to ideas.
which it picks up from the ether. On the other hand, when the brain is vibrating at a rapid rate, it not only attracts thoughts and ideas released by other brains through the medium of ether, but it gives to one own thought that feeling which is essential before those thoughts will be picked up and acted upon by one's subconscious mind. Thus, you will see that broadcasting principle is the factor through which you mix feeling or emotion with your thoughts and pass them on to your subconscious mind. The subconscious mind is the sending station. Subconscious mind क्या है? एक sending station है of the brain through which vibration of thoughts are broadcast. जिसके थ्रू हमारे जो वाइब्रेशन ऑफ थॉट्स है वो ब्रॉडकास्ट होते हैं. द क्रिएटिव इमेजिनेशन इज द रिसीविंग सेट. जो हमारी इमेजिनेशन है, क्रिएटिव इमेजिनेशन है, वो क्या है? रिसीविंग सेट थ्रू विच द वाइब्रेशन ऑफ थॉट्स आर पिक्ड अप फ्रॉम द ईथर. Along with the importance factor of the subconscious mind and faculty of the creative imagination which constitute the sending and receiving set of mental broadcasting machinery. Consider now the principle of autosuggestion, which is the medium by which you may put into operations your broadcasting station. हेलो मिस्टर अज़ाम. हेलो मिस्टर अज़ाम, हाउ आर यू? मैंने आपकी एक वीडियो में कमेंट करा था, उससे आप ज़रूर पढ़िएगा. ज़रूर भाई, ज़रूर पढ़ूँगा. भाई खाना हो गया? यस यस कपिल चौधरी भाई, खाना वाना सब हो गया मेरा. ठीक है, आप लोग सबका खाना हो चुका है. क्या खाया है ये बता दो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ. Through the instruction described in the chapter on autosuggestion, you were definitely informed of the method which desire may be transmitted into its monetary equivalent. Operation of your mental broadcasting station is comparatively simple procedure. You have but 3 principles to bear in mind and to apply. आपको 3 principle याद रखने होंगे और अप्लाई करना होगा. When you wish to use your broadcasting station, the subconscious mind, creative imagination and autosuggestion, the stimuli through which you put these 3 principles into action have been described. The procedure begins with desire. The greatest forces are intangible. The depression brought the world to the very border line of understanding of the forces which are intangible and unseen. Through the ages which have passed, man and depended too much upon his physical senses and has limited his knowledge to physical things, which he could see, touch, weigh and measure. We are now entering to the most marvelous of all ages, an age which will teach us something of intangible forces of the world about us. Perhaps we shall learn as we pass through this age, and the other self is more powerful than the physical self we see when we look into the mirror. हमेशा याद रखना कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है. भाई आज मैंने सपने सारे ग्रुप मिस कर रहा था बहुत. अच्छा कपिल भाई मिस कर रहे थे. कोई नहीं भाई, आ जाना भाई, आ जाना. हम लोग तो वहीं रहते हैं, हम लोग वहीं स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, लोधी गार्डन में प्रैक्टिस करते हैं, तो आ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है. काफ़ी बड़ा मैसेज है, मैंने कमेंट कर दिया है आपकी एक वीडियो में. ओके डन. भाई आज मटर पनीर और छोले की रोटी मक्खन लगा के खाए थे. क्या बात है, शानदार कपिल भाई, पार्टी शार्टी हो रही है. घर का मक्खन, मटर पनीर, क्या बात है. कोई खुशखबरी? Sometimes men speak lightly of the intangibles, the things which they cannot perceive through any of their 5 senses. And when we hear them, it should remind us that all of us are controlled by forces which are unseen and intangible. The whole of mankind has not the power to cope up with, nor to control the intangible forces wrapped up in the rolling waves of occasions. Man has not the capacity to understand the intangible force of gravity. इंसान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो intangible force of gravity को समझ पाए, which keeps the little earth suspended in the mid-air and keeps men from falling from it, much less power to control that force. Man is entirely subservient to the intangible force which comes with a thunderstorm, and he is just as helpless in the presence of the intangible forces of electricity. तो जैसे हम लोग भाई ग्रेविटी के सामने हेल्पलेस हैं, जैसे हम लोग थंडर स्ट्रॉम के आगे हेल्पलेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के आगे हमारी कुछ नहीं चलती. ही डज़ नॉट इवन नो व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज़, वेयर इट कम फ्रॉम एंड व्हाट इट्स पर्पस. बहुत लोगों को ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई है, क्या मतलब कैसे जनरेट हो रही है और क्या उसका पर्पस है.
Nor is this by any means of the end of man's ignorance in connection with things unseen and intangible. He does not understand the intangible force and intelligence. ह्यूमन बीइंग नहीं समझ पाता इंटेंजिबल फोर्स के बारे में और इंटेलिजेंस के बारे में. रैप्ड अप इन द सॉइल ऑफ अर्थ. हमारी देश की मिट्टी या फिर कहीं पर भी आप जाओगे, अर्थ की जो मिट्टी है उसमें क्या क्या छुपा है हमें नहीं पता. द फोर्स विच प्रोवाइड हिम विद एवरी मोरसेल ऑफ फूड ही ईट्स. जो आपको शक्ति देता है, क्या देता है? खाना ही तो शक्ति देता है. एवरी आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग ही वियर्स, एवरी डॉलर ही कैरीज इन हिज पॉकेट. सब जमीन से ही तो आया है. हेलो अमन भाई, आई एम बैक आफ्टर 2 days. अनु शर्मा, हर्ष भाई आ चुके हैं हमारे साथ, स्ट्रीम में जुड़ चुके हैं. क्या बात है. बस ऐसे ही आते रहो और ज्ञान की बातें सुनते रहो. एक बार मैं ज़रा लिंक शेयर करके आ जाऊँ. लिंक शेयर करके आ जाता हूँ, फिर उसके बाद हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़ जाएंगे. एक सेकंड गाइस. चलो भाई, डाइट करते हो तो चीट डे कैसे करते हो भाई? हफ्ते में एक दिन चीट डे कर सकते हो. हफ्ते में एक दिन चीट डे कर सकते हो. और घर का ही खाना थोड़ा ज़्यादा खाना है तो 2 दिन कर सकते हो. बाहर का एक दिन चलता है हफ्ते में, पर मेहनत कर लेना उस दिन भी. अनु शर्मा, इतना दिन से हाँ था भाई. हेलो हर्षफ्री, हर्ष के गेम प्ले. देर आर 3 हर्ष वेरिएशंस. वेलकम बैक अनु शर्मा. अनु शर्मा आ चुके हैं. हाँ भाई, एक खुशखबरी है. मेरी रनिंग का टाइम अच्छा रहा है तो प्रैक्टिस बहुत हार्ड हो रही है, तो टाइमिंग अच्छी है. एकल रन में फर्स्ट प्लेस डालूंगा. क्या बात है. गुड कपिल भाई, गुड. हर्षश्री, अनु शर्मा तुम हो भाई. ओमनिकॉन और हर्ष के गेमिंग डेल्टा. मोनल भाई आ चुके हैं. हेलो मोनल गंठालिया, कैसे हो? हर्षश्री, आप कौन से वेरिएंट हो? और मार्वल जे वेरिएंट मल्टीवर्स की बात कर रहा हूँ. अच्छा, बैडमिंटन के जो मैचेस हैं उसमें सिर्फ गोल्ड सिल्वर मिलते हैं प्लेयर को, या ब्रॉन्ज भी मिलता है? ब्रॉन्ज तो मेरे हिसाब से नहीं मिलता. ब्रॉन्ज नहीं मिलता शशांक भाई, ब्रॉन्ज नहीं मिलता मेरे हिसाब से, नहीं मिलता. ओपन टूर्नामेंट में पोडियम पे तो वैसे 2 ही लोग चढ़ते हैं. मैंने जो टूर्नामेंट्स देखे हैं उनमें 2 ही देखे मैंने चढ़ते हुए ओपन टूर्नामेंट्स में. तो ब्रॉन्ज मेडल नहीं है, बस प्राइज़ मिल जाता है फर्स्ट और सेकंड को. कभी कभी मैंने 3 भी चढ़ते हुए देखे. तो डिपेंड करता है यार, हर टूर्नामेंट का अपना हिसाब है. अब जैसे टोटल एनर्जीज होगा तो उसमें टोटल एनर्जीज में आई गेस 1 2 3 होगा. ब्रॉन्ज मेडल भी होता है भाई. वैसे एक गुड न्यूज़ है, इंडिया वॉन फर्स्ट एवर वुमेन गोल्डन वुमेन. अंतिम फंगाल वन फर्स्ट वुमेन गोल्ड. क्या बात है अनु शर्मा, गुड गुड. थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन गाइस. ऐसी अच्छी न्यूज़ शेयर करते रहिए. आगे बढ़ते हैं. समटाइम्स men speak lightly of the intangible, the things which they cannot perceive through any of their 5 senses, and when we hear them, it should remain us that all of us are controlled by forces which are unseen and intangible. The whole of mankind has the power to cope with, not to control the intangible force wrapped up in the rolling waves of the ocean. Man has not the capacity to understand the intangible force of gravity, which keeps the little earth suspended in the mid-air and keeps men from falling from it. तो देखो, ये सारी चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ अगर जिसने नहीं सुनी हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Nor is this by any means the end of the man's ignorance in the connection with the things unseen and intangible. He does not understand the intangible force wrapped up in the soil of the earth. The force which provides
him with every morsel of food he eats. इस धरती में जो सॉइल छुपी है उसके अंदर जो भी कुछ है वो हमें खाना देता है. हम कोई भी चीज़ उगाते हैं तो ज़मीन से ही उगती है, हवा में नहीं उग रही है. केमिकल्स वगैरह जो भी हमने इजाद किए हैं, जो ड्रग्स बनाए, वो कहीं ना कहीं से हमें मिलते ही हैं, है ना. ज़मीन के अंदर से दवाई वगैरह ये सारी चीज़ें पेड़ों पे उग रही है. तो पेड़ कहाँ से उग रहे हैं? पेड़ भी आपके उग रहे हैं तो ज़मीन में ही तो उग रहे हैं. मौलाना भाई कैसे हो? ठीक है. एवरी आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग ही वियर्स, एवरी डॉलर ही कैरीज इन हिज पॉकेट, सब मिट्टी से आया. The dramatic story of the brain. Last but not least, men with all of his boasted culture and education understand little or nothing of intangible force, the greatest of all intangible of thought. He knows but little concerning the physical brain and its vast network of intricate machinery through which the power of thought is translated into material equivalent. But he is now entering an age which shall yield enlightenment on the subject. Already men of science have begun to turn their attention to the study of stupendous thing called a brain while they are still in the kindergarten stage of their studies. They have uncovered enough knowledge to know that the central switchboard of the human brain, the number of lines which connect the brain cells one with another, equal the figure 1, followed by 15 million keepers. हाय जैकी मॉल, स्लीप का क्या हुआ? बस जिंदा हूँ. नींद वींद आ रही है नहीं आ रही है? बॉडी को थकाया आज नहीं थकाया? हाय अमन भाई कैसे हो आप? बस बढ़िया जैकी भाई, एवरीवन हैप्पी. तो यहाँ पर बात करें, हर्ष पीछे 2-3 साल से काफ़ी ग्रो हो रहा है जो काफ़ी अच्छा है. मॉल भाई स्लीप का क्या हुआ? बॉडी को पुशअप्स वगैरह स्क्वाट्स मार के थकाया क्या? मैं देशवासियों से पूछूंगा अदर स्पोर्ट्स ग्रो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए. भाई नए स्पोर्ट्स को भी जगह मिलनी चाहिए, उनको भी ग्रो करना चाहिए. मैं चाहता हूँ कि लॉन बॉल खेलें, आयरन बॉल जैसा स्पोर्ट आने वाला है. बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि अभी प्राइवेट हैं और जल्दी से जल्दी ओलंपिक में देखने को मिलेंगे. जब वो देखने को मिलेंगे तब आप तैयारी करोगे, तब तक बहुत कंपटीशन बन जाएगा. तो नए नए भी वीडियोस को देखते रहो. भाई आज लेट हो गए आप, सॉरी जैकी भाई, आई एम रियली सॉरी. आज मैं एक स्पोर्ट्स के बारे में, चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ. एक सेकंड. ओहो कुछ इधर उधर. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो. ये देखो है आपके घर में स्पार्किंग हो रही. स्पार्किंग नहीं, वो लाइट हो गई यार. ये देखो. ठीक, अगर आपको सीधा दिख रहा होगा तो बढ़िया, नहीं दिख रहा हो तो कोई नहीं. ये एक स्पोर्ट है आयरन बॉल करके. हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल को मिलाकर बनाया गया है. ठीक है, और ये मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ ये स्पोर्ट. ठीक है, ऑलरेडी इंटरनेशनली खेला जाता है और इंडिया में इसके 3 नेशनल हो चुके हैं. ऑलरेडी 3 नेशनल हो चुके हैं और अगला नेशनल होने वाला है 3 महीने के अंदर ही. और एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी हो चुकी है मोरक्को के खिलाफ, जिसमें इंडिया के प्लेयर्स भी खेले थे. तो ये काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है. आयरन बॉल का बताओ भाई अमन भाई प्लीज़. सब अभी नहीं बताऊंगा, मैं कल एक वीडियो डालूंगा, उसमें सारी जानकारी है. रात को डाल दूँ तो अगर आप में से कोई देखेगा तो सुबह 6:30 बजे करीब उठ के देख लेना. ये गेम है फेंसिंग, तलवारबाजी. ओलंपिक्स में उसमें इंडिया 4th आया था. पेरिस में गोल्ड चाहिए उसमें. हर्षवी, यस यस यस. अलग अलग स्पोर्ट्स में अगर हम हाथ मारते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो तो हम लोग जीत सकते हैं. ठीक है. He knows but little concerning the physical brain and its vast network of intricate machinery through which the power of thought is translated into the material equivalent. But he is now entering an age which shall yield enlightenment on the subject. Already the men of science have begun to turn their attention to the study of the stupendous thing called a brain. तो पहले तो नहीं इतना ध्यान दिया जाता था, पर अब क्या होता है कि इस बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है, क्या है ब्रेन का काम. वाइल दे आर स्टिल इन द किंडरगार्टन स्टेज ऑफ देयर स्टडीज़, मतलब जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं. दे हैव अनकवर्ड इनफ नॉलेज
to know that the central switchboard of the human brain, the number of lines which connect the brain cells one with another, equal the figure 1, followed by 15 million capillaries. The figure is so stupendous, said Dr. C. Judson Herrick of the University of the Chicago, that astronomical figures dealing with 100 of millions of light years become insignificant by comparison. It has been determined that there are form ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, 100 crore. वैसा नर्व सेल इन द ह्यूमन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब इतने नर्व सेल्स होते हैं, समझ सकते हो, इतने नर्व सेल्स, मतलब हमारी उंगली, हमारे मांस, हमारे नाखून तक को दर्द जो होता है वहाँ तक के लिए भी एक एक नर्व जा रही है, और वो सब ब्रेन से कनेक्ट है आपके. नर्व सेल इन द ह्यूमन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, and we know that these are arranged in definite patterns. These arrangements are not haphazard. और ये मत सोचना कि ये ऐसे ही बस कहीं से भी कहीं लिंक कर रखा है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से हो रही है एक चीज़ों से. अगर आप अभी पैर मूव करना चाहते हो तो वो भी आपका अटैच हो रखा है ना अमन भाई? आई एम राइट रॉन्ग? क्या आयन बॉल कब बताओ? इंडिया विंटर ओलंपिक स्पोर्ट्स में खेलें, आइस हॉकी स्की में बहुत पीछे हैं इसमें. हाँ यार, जितने ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी उतना ज़्यादा विंटर ओलंपिक्स में हम लोग कुछ अच्छा कमाल कर पाएंगे, है ना. इंडिया विंटर ओलंपिक स्पोर्ट्स में खेले आइस हॉकी. ओके हर्षरी, आइस हॉकी के फैसिलिटीज़ भी कम है. हाँ, इन्हें बढ़ाना पड़ेगा तभी तो कुछ हो पाएगा. एक गेम है फेंसिंग, हो गया भाई. ओलंपिक में कितने गेम होते हैं? बहुत गेम होते हैं भाई, वो डिपेंड करता है, कभी हटा भी सकते हैं, कभी बढ़ा भी सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है. बने रहिए इस चैनल के साथ, आपको सारी अपडेट देते रहेंगे. हर्षरी आइस हॉकी का स्टेडियम मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. हाँ बिल्कुल मुश्किल है, बट अगर हम उसमें चीज़ें करें कि हम लोग उसको थोड़ा सस्ता कर दें, सबके लिए अवेलेबल कर दें, फ्री कोचिंग दें, है ना, और बाहर से प्लेयर्स को बुलाएं कि आप लोग आओ, सीखो, खेलो, तो चीज़ें अपने आप मेंटेन भी हो जाएंगी. लीग्स करवाएं, टूर्नामेंट्स करवाएं, तो जो पैसा आएगा वो मेंटेनेंस पे लग जाएगा. बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फेडरेशन काम ही नहीं कर रही है. इंडियन के फुटबॉल के बारे में कुछ बताओ. चिराग चिर, इंडिया का फुटबॉल अभी तो बैन चल रहा है ना, हम इंटरनेशनल फ्रेंडलीज खेल सकते हैं. फीफा ने हम पे बैन लगा दिया है. AFC कप भी खतरे में हो चुका है. हमारा वुमेन, हमारे जो AIFF था वो वुमेन अंडर 17 कंडक्ट करवाने वाला था फीफा, वो भी हमसे छिन चुका है. तो हमारा फुटबॉल का करियर तो अभी थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है. दे आर ऑर्डरली, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. हमारे दिमाग में इतने नर्व सेल्स हैं कि हमें पता ही नहीं है. दे आर ऑर्डरली, रिसेंटली डेवलप मेथड ऑफ इलेक्ट्रोसाइकोलॉजी draw of action currents from very precisely located cells or fibers with micro electrodes, amplify them with radio tubes and record potential difference to a millionth of a volt. तो देखो बहुत बहुत नए तरीके आ चुके हैं जिससे हम लोग उनके बारे में पता लगा सकते हैं कैसे वो काम करते हैं, कौन सी एरिया में सबसे ज़्यादा सेल्स हैं. It is inconceivable that such a network of intricate machinery should be existence for the sole purpose of carrying on the physical functions incidental to growth and maintenance of the physical body. It is not likely that the same system which gives millions of brain cells the media of communication one with another provides also the means of communication with other intangible forces. After this book had been written, just before the manuscript went to the publisher, there appeared in the New York Times an editorial showing that at least one great universities and one intelligent investors in the field of mental phenomena are carrying on an organized research through which conclusions have been reached that parallel many of those described in this and following chapter. Editorial briefly analyzed the work carried on by Dr. Rain and his associate at Duke University with What is telepathy? कश्मीरी करते हैं स्कीइंग, उन्हें सपोर्ट भी करती है, लेकिन बस 5 प्लेयर्स गए थे विंटर ओलंपिक्स. अनु शर्मा, बाय, गुड नाइट ब्रो. यशवंत पाटिल इज़ वॉचिंग दिस लाइव स्ट्रीम, धन्यवाद भैया. पढ़ाई के लिए कुछ टिप्स बताओ.
थोड़ा पढ़ो, रोज पढ़ो इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर पढ़ाई। पहले शुरुआत आधे घंटे से करो, जब आधा घंटा रोज एक हफ्ते पढ़ने लग जाओ तो फिर 1 घंटा निकालो। अभी आपको लग रहा होगा भैया मैं तो 4-4 घंटे पढ़ लेता हूँ, मैं तो उससे ज़्यादा के लिए पूछ रहा हूँ। तो अगर 4 घंटे पढ़ते हो तो एक हफ्ते नॉन स्टॉप 4 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। मतलब अगर आपको अपना स्टेमिना, जैसे हम रनिंग करते हैं, हम रनिंग क्या करते हैं, एक दिन में 10 किलोमीटर भागते हैं नहीं ना। पहले हम आराम से 500 मीटर भागते हैं, फिर 500 500 500 500 करते करते हफ्ते भर में हमारा स्टेमिना बिल्डअप होता है। हम लोग क्या करते हैं, फिर 2 किलोमीटर की रन करने की सोचते हैं, फिर 2 किलोमीटर हमें इजी लगने लग जाता है, फिर हम और ज़्यादा करते हैं, धीरे 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 2-2 पे, फिर 5 पे आते हैं, फिर 5 करते करते फिर हम 10 किलोमीटर पे जाते हैं। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम लोग फुल मैराथन भी कर जाते हैं। तो कंसिस्टेंट रहो, थोड़ा पढ़ो पर रोज़ पढ़ो, ये सबसे रामबाण इलाज है। आधे घंटे से शुरू करो, 1 घंटे पे जाओ, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। सब्जेक्ट में अगर मन लगा के करोगे और मज़े के साथ करोगे ना पढ़ाई, तो बहुत अच्छी लगती है। तब तो टाइम भी नहीं देखते, पर आप लोगों को टाइम देखना है ताकि आपको पता चले कि आप कितनी देर में कितनी पढ़ाई कर रहे हो। आन भाई एटॉमिक हैबिट बहुत अच्छी बुक है, मैंने आज पढ़ी मज़ा आ गया। हर्ष के गेम प्ले अच्छा, कैसी बढ़िया बुक है, सोच रहा था मैं उसे पढ़ूंगा, लेकिन कंसिस्टेंसी रहती है 5 घंटे पढ़ो, उससे कम नहीं। बिल्कुल पढ़ाई करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, एकदम से बढ़ाओगे तो नहीं हो पाएगा। Carrying on an organized research through which conclusions have been reached that parallel many of those described in this and the following chapter. The editorial brief analyzed the work carried on by the Dr. Rin and his associate at Duke University. What is telepathy? क्या है telepathy? A month ago, we cited on this page some of the remarkable results achieved by the Professor Rin and his associate in Duke University. From more than 100,000 tests to determine the existence of telepathy and clairvoyance, these results are summarized in the first 2 articles in Harper's Magazine. In the second, which now appeared, the author E.H. Wright attempts to summarize what has been learned or what it seems reasonable to infer regarding the exact nature of these extrasensory modes of perception. The actual existence of telepathy and clairvoyance now seems to some scientists enormously probable. As the result of Ryan's experiment, various percipients were asked to name as many cards in a spatial pack as they could without looking at them and without other sensory access to them. About a score of men and women were discovered who could regularly name so many of the cards correctly that there was not one chance in many a million of their having done their feats by luck or accident. But how did they do them? These powers, assuming that they exist, do not seem to be sensory. There is no known organ for them. The experiment worked just as well as distance of several hundred miles as they did in the same room. These facts also dispose, in Mr. Wright's opinion, of the attempt to explain telepathy or clairvoyance through any physical theory of radiation. All known forms of radiant energy decline inversely as the square of the distance transverse. Telepathy of clairvoyance do not, but they do vary through physical causes as are other mental powers too. पढ़ाई के लिए कुछ टिप्स हो गए हैं, अनबाइटों में होके हैं, लेकिन कंसिडर ओके, मतलब मैं रोज रोज लो, एक दिन मत छोड़ो। जी भाई बहुत सही बुक है, ओके ब्रदर, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आई गेस एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी हैबिट्स पे अच्छे से कंट्रोल रखना होगा ताकि हम लोग और बेहतर बन सकें। हर्षी आप कौन से स्टेट से हो? आगे बढ़ते हैं। Causes as are other mental powers do. Contrary to widespread opinion, they do not improve when the percipient is asleep or half asleep, but on the contrary, when he is most wide awake and alert. Ryan discovered that a narcotic will invariably lower a percipient score, while a stimulant will always send it higher. The most reliable performer apparently cannot make a good score
unless he tries to do his best. रुक जाओ, अब बस थोड़ा सा ही रह गया, ये एक पेज रह गया, फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा. परसों BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप है. यस यस यस, परसों शुरू है. पीवी सिंधु नहीं खेल रही है, इस बात का दुख है. छंद से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लगे, ऐसा लग रहा है जब पीवी सिंधु नहीं खेलेंगी तो. हर्षी दिल्ली NCR से, क्या बात है. तो गाइज मैं एक आयरन बॉल से रिलेटेड अपडेट वीडियो डालने वाला हूँ. जल्दी से उस वीडियो को ज़रूर देखना, मतलब आज या कल सुबह तक पक्का डाल दूंगा. उस वीडियो को देखना. अगर आप दिल्ली में हैं या अपनी स्टेट्स में हैं तो आयरन बॉल के बारे में देखना, सीखना और उसे खेलना ज़रूर. अपने आसपास मतलब थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाओ, प्लस खुद भी खेलो. अगर आपकी स्टेट मतलब 20 से 22 स्टेट खेलती हैं इस स्पोर्ट्स को, आयरन बॉल को खेलती हैं. आपको नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी 2 महीने पहले ही पता चला है. और मैं काफ़ी टाइम से मतलब वैसे मैंने डेडिकेटेडली कोई वीडियो नहीं बनाई, पर अब खुद गेम को समझा हूँ तो मुझे अच्छा लगा. मैं प्रमोट करूँगा और आप लोगों को भी बोलूँगा ज़रूर खेलना, ताकि कंपटीशन में मज़ा आए. ठीक है, नए स्पोर्ट्स को खेलो, देखो, सीखो और कंट्री को रिप्रेजेंट करो. प्लस पढ़ाई, अगर पढ़ाई में कुछ बड़ा करना है तो पढ़ाई करते रहो. उसके भी चीज़ों के बारे में कॉन्टेस्ट चलते हैं, क्विज़ेस चलते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो, नाम कमाओ. इंडिया के लिए ओलंपियाड्स होते हैं, मैथ्स ओलंपियाड में धड़ाधड़ नंबर ले आओ. The reader is not asked to accept any of these conclusions unless he finds it necessary, but the evidence of Ryan has piled up must remain impressive. In the view of Dr. Ryan, announcement in connection with the conditions under which the mind responds to what he terms extrasensory modes of perception, I now feel privileged to add to his testimony by stating that my associates and I have discovered what we believe to be the ideal condition under which the mind can be stimulated so that the sixth sense described in the chapter can be made to function in a practical way. The condition to which I prefer consists of a close working alliance between myself and 2 members of the staff. Through experimentation and practice, we have discovered how to stimulate our mind. By applying the principle used in connection with invincible counselors, describing in the chapters, so that we can by a process of blending our 3 mind into 1, find the solution to a great variety of personal problems which are submitted by my clients. The procedure is very simple. We sit down at a conference table, clearly state the nature of the problem we have under the consideration, then begin discussing it. Each contributes whatever thoughts may occur. The strange thing about this method of mind stimulation is that it places each participation in the communication with known sources of knowledge, unknown sources of knowledge, definitely outside his own experience. मैं नोएडा से हूँ, यूपी से. ओके, जय श्री राम यूपी गैंग. चलो हम चलते हैं, किसी गेम में यूपी को रिप्रेजेंट करेंगे. क्या बात है शशांक भाई. और फिर ये वहाँ से कंट्री को भी. गुड गुड गुड. देखो, सपोर्ट करने में अपना मज़ा है, पर वहाँ जब एज अ प्लेयर खेलो तो उसका अलग ही मज़ा है. If you understand the principle described in the chapter on the mastermind, you of course recognize the round table procedure here described as being a practical application of the mastermind. This method of mind stimulation through harmonious discussion of definite subjects between 3 people illustrates the simplest and the most practical use of mastermind. By adopting and following a similar plan, any student of this philosophy may come into possession of famous Carnage formula briefly described in the introductions. If it means nothing to you at this time, mark this page and read it again after you have finished the last chapter. The depression was a blessing in disguise. It reduced the whole world a new starting point that gives everyone a new opportunity. The Sixth Sense is the next chapter. हमने एक चैप्टर आज ख़त्म कर दिया है. 13 चैप्टर पे आ जाएंगे. फिर उसके बाद होगा How to outwit the sixth ghost of fear.
कैसे अपने 6 फियर्स को आप भगा सकते हो, वो चलेगा टॉपिक लास्ट में, ठीक है। द सिक्स सेंस हम कल पढ़ेंगे, द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। सिक्स सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आपकी आदत आर्मी वालों जैसी है, आर्मी वालों की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। भाई आपकी आदत आर्मी वालों जैसी है, आर्मी वालों की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, लेकिन ये सब नहीं करते चैट वाले, इनको बोलो कुछ। कौन नहीं करता आर्मी की रिस्पेक्ट? सब करते हैं भाई। आर्मी की रिस्पेक्ट जो नहीं करता वो देशद्रोही है, जो आर्मी की रिस्पेक्ट करता है वो देश प्रेमी है, जो नहीं करता है वो देशद्रोही है। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस लाइव स्ट्रीम, लव यू। और इतनी रात को हमारे साथ जागने के लिए शुक्रिया। चाहे 1 2 3 6 7 8 कितने लोग भी जागे हों, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।